السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام سامعین صحت مند ہوں گے اور رمضان المبارک کے نعمتوں کو بھرپور دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا مضمون خاص ہے لیمفوما ایکسپلینڈ۔ لیمفوما کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بائیں جانب لمفیٹک سسٹم دکھایا گیا ہے اور اس کے نیچے لیمفوما کی چھوٹی سی تصویر دکھائی پڑ رہی ہے۔ آئیے ہم آگے سمجھتے ہیں لمفی نظام اور لیمفوما کا تعارف۔ انٹروڈکشن آف لمفیٹک سسٹم اینڈ لیمفوما۔ لمفی نظام کیا ہے؟ انسانی جسم میں لمفی نظام دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسانی جسم میں لمفی نظام دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ون آف دا موسٹ پرامیننٹ سسٹم آف دا امیون سسٹم۔ قدرت نے جتنا دفاعی نظام دے رکھا ہے، اس دفاعی نظام کا ایک مخصوص حصہ لمفی نظام ہے۔ لمفی نظام کا بنیادی کام کیا ہے؟ جسم کو جراثیم، وائرس اور دیگر مضر مادوں سے محفوظ رکھنا۔ اور مدافعتی خلیات کی افزائش و فعالیت کو برقرار رکھنا۔ مدافعتی خلیات سے مراد وہ خلیات ہیں جو دفاع یا ڈیفنس میں کام آتی ہیں۔ ان کی افزائش، گروتھ اور فعالیت، ایکٹیویٹی، پروڈکشن آف ڈیفنس سیل اینڈ ٹو مینٹین دیئر اوور آل ایکٹیویٹی۔ لمفی نظام کیا ہے؟ مختصر طور پر ایک بار پھر توجہ سے سنیں۔ انسانی جسم میں لمفی نظام دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ لمفی نظام کا بنیادی کام کیا ہے؟ جسم کے جراثیم، وائرس اور دیگر مضر مادوں سے محفوظ رکھنا اور مدافعتی خلیات کی افزائش و فعالیت کو برقرار رکھنا۔ لمفی نظام کے اہم اجزاء: دا فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف لمفیٹک سسٹم اس نظام میں شامل ہیں۔ نمبر 1، لمف نوڈز اور لمفی نالیاں، طحال یا اسپلین، غیر غدہ تیموس، تھائمس اور گودا ہڈی، بون میرو۔ تو اس میں یہ 5 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ لمف نوڈز چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہوتی ہیں جن کو ہم لمف نوڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر لمفی نالیاں جس میں لمفس رواں دواں ہوتا ہے خون کی طرح سے۔ نمبر 3 طحال یا اسپلین، اور اس کے بعد تھائمس، اس کے بعد بون میرو۔ شروعات میں اسی بون میرو میں آپ کی وائٹ بلڈ سیلز یا بلڈ سیلز بنتی ہیں، اس کے بعد ان کا میچوریشن کچھ انہی میں ہوتا اور کچھ الگ چلی جاتی ہیں۔ اسی سے بی سیل اینڈ ٹی سیل۔ بی سیل بارن اینڈ میچورڈ ود ان دا بون، اس لیے اس کو بی سیلز کہتے ہیں، اور ٹی سیلز بارن ان بون میرو بٹ میچوریٹ آؤٹ سائڈ دا بون میرو، میچوریٹ ان دا تھائمس، دیٹس وائی دس از نون ایز تھائمس۔ ان اعضاء میں لیمفوسائٹس پیدا ہوتے ہیں اور پختہ ہوتے ہیں۔ بارن اینڈ میچور، جو جسم کے مدافعتی قوت کا بنیادی حصہ ہے۔ لیمفوسائٹ، یہ جو آپ کا لمف نوڈ، لمف نالی، طحال، تھائمس اینڈ بون میرو۔ جب انہی لیمفوسائٹس میں جینیاتی یا خلیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے، جینیاتی تبدیلی سے مراد خلیات کے نیوکلیس میں پائے جانے والے جینیٹک میٹیریل یا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ میں ایک اچانک تغیر ہو جائے۔ اس اچانک ہونے والے تغیر کو میوٹیشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جینیاتی یا خلیاتی
تبدیلی پیدا ہو جائے اور وہ بے قابو انداز میں بڑھنے لگے. یعنی سب سے پہلے اول میں جینیٹک میوٹیشن ہوگا اور نمبر 2 بے قابو انداز میں بڑھنے لگے. غیر معمولی نشو و نما اور افزائش ان ریگولیٹڈ غیر قابو بے قابو ان ریگولیٹڈ گروتھ آف دی سیل. نمبر 1 میوٹیشن اینڈ نمبر 2 اٹس افیکٹ از uncontrolled growth of the cells. تو لمفی حدود اور متعلقہ اعضاء میں ایک مہلک رسولی پیدا ہو جاتی ہے. اس پیدا ہونے والی مہلک رسولی کو لمفوما کہا جاتا ہے. ایک بار پھر سمجھیے، کچھ خلیات کے نیوکلیس میں پائے جانے والے جینیٹک میٹیریل یا ڈی این اے میں اچانک تغیرات ہوتا ہے جس کو ہم جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں انکنٹرولڈ گروتھ آف دا سیل غیر قابو یا بے قابو انداز میں خلیات کی افزائش یا بڑھوتری ہونے لگتی ہے اور اسی کی وجہ سے ایک مہلک رسولی یا ٹیومر پیدا ہوتا ہے جسے ہم لمفوما کہا جاتا ہے. لمفوما کی تعریف سادہ الفاظ میں، عزیز اسٹوڈنٹس اس کو خاص طور سے توجہ دیں، سادہ الفاظ میں لمفوما لمفی نظام کا لمفوما دس از ریلیٹڈ ود دا لمفیٹک سسٹم. لمفوما لمفی نظام کا سرطان ہے. اگر کچھ نہ ہو تو بس اتنی کافی ہے. لمفوما لمفی نظام کا سرطان یعنی کینسر ہے جس میں لمفوسائٹس کی غیر معمولی افزائش ہوتی ہے. بہت سارے ویڈیو ہم نے پوسٹ کیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں کامن ہیں. جب بھی سرطان کی بات آئے گی، غیر معمولی اچانک تبدیلی ڈی این اے میٹیریل میں جس کو ہم جینیٹک میوٹیشنز کے نام سے جانتے ہیں. نمبر 2 غیر معمولی افزائش جس میں غیر معمولی افزائش ہوتی ہے اور غیر منظم ہوتی ہے. انکنٹرولڈ اوور پرولیفریشن آف دا سیلس. طب یونانی کی اصطلاحات میں اس کیفیت کو عموماً تو ورم غدد لمفیہ یا سرطان غدد کے نام سے جانتے ہیں. یہ تورم لفظ نہیں ہے، عموماً متورم، یہ موتورم میم یہاں چھوٹ گیا ہے، یہ موتورم ہوگا. یہ آپ ایک بار پھر لے لینے دیجیے پین جو ہے، یہ لفظ ہے موتورم. موتورم متورم غدد لمفیہ یا سرطان غدد کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. تو لمفوما کی تعریف ایک بار سن لیجیے عزیز سامعین. سادہ الفاظ میں لمفوما لمفی نظام کا سرطان ہے جس میں لمفوسائٹس کی غیر معمولی افزائش ہوتی ہے. طبی یونانی کی اصطلاحات میں اس کیفیت کو عموماً متورم غدد لمفیہ یا سرطان غدد کے نام سے بیان کیا جاتا ہے. لمفوما کی اقسام یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. نمبر 1 ہاجکن اور نمبر 2 نان ہاجکن. لمفوما کو بنیادی طور پر 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی قسم ہاجکن لمفوما ہے. اس بیماری میں یعنی ہاجکن لمفوما کی تعریف ہے. اس بیماری کی خاص پہچان ریڈ ایسٹرن برگ سیلز. یہ خاص توجہ دیں، یہ صرف ہاجکن لمفوما میں ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا. ریڈ ایسٹرن برگ سیلز کی موجودگی
किस में होता है? हाजकिन लिम्फोमा में, जो लिम्फी नोड बायोप्सी में नज़र आते हैं। यह खलिए बड़े गैर मामूली खलियात होते हैं जिनकी शक्ल अक्सर आउल आई अपीयरेंस से मुशाबह होती है। आउल आई अपीयरेंस उल्लू की आँख से मुशाबहत रखने वाली शक्ल की खलियात होती है। इन खलियात की शक्ल कैसी होती है? इस खलियात की शक्ल उल्लू की आँख, उल्लू जो रात में दिखाई पड़ता है, जो रात में ज़्यादा हसास होता है, उसकी आँख कहते हैं कि बहुत ही पैनी होती है, तो उसकी एक ख़ास शबाहत या शक्ल होती है। उसी उल्लू की आँख की शक्ल की खलियात पाई जाती हैं हाजकिन लिम्फोमा में, और इन ख़ास आउल आई अपीयरेंस वाली खलियात को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहा जाता है। इन खलियात को आउल आई अपीयरेंस शेप वाली खलियात को क्या कहा जाता है? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। और ये किस चीज़ का मखसूस है? ये हाजकिन लिम्फोमा में है। नॉन हाजकिन लिम्फोमा में ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं पाए जाएंगे। हाजकिन लिम्फोमा आमतौर पर नौजवान अफराद में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी एक ख़ास खसूसियत यह है कि यह बीमारी उमूमन लिम्फ नोड में तरतीबवार यानी ग्रेजुअली फैलती है। लिम्फ नोड में तरतीबवार फैलती है। दूसरी किस्म नॉन हाजकिन लिम्फोमा है, जो निस्बतन ज़्यादा आम है। पहला वाला आम नहीं है, लेकिन ये आम है। इसमें रीड स्टेनबर्ग खलियात मौजूद नहीं होते हैं। सब पहले ही हम वजाहत कर चुके हैं कि आउल आई अपीयरेंस शेप्ड उल्लू की आँख की शक्ल की मुसाबह रीड स्टर्नबर्ग खलियात सिर्फ हार्डस्किन डिप्लोमा लिम्फोमा में होता है, नॉन हार्डस्किन में नहीं होता। और इसकी मुतअद्दिद अक़साम होती है, जैसे बी सेल लिम्फोमा और टी सेल लिम्फोमा। नॉन हाजकिन लिम्फोमा की एक नुमाया खसूसियत यह है कि यह बीमारी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गैर मुनज़्ज़म अंदाज में फैल सकती है। हाजकिन में एक तो आपको बताया गया कि ख़ास तरीके का खलियात जिसको हम रीड स्टेनबर्ग कहते हैं, और उस खलियात की ख़ास खलियात की शक्ल उल्लू के आँख की तरह होती है, और वो सिर्फ उन्हीं करीबी बाफ्तों तक महदूद रहता है। जबकि नॉन हाजकिन लिम्फोमा जो सबसे आम है, ये अपने करीबी बाफ्तों से निकल कर के दूसरे दूर के, जैसे हमने पहले बता चुके हैं कई वीडियो में कि यहाँ से निकला, आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है करीब करीब को तो तबाह बर्बाद करेगा, और फिर जा कर के बहुत दूर जो है बर्बाद करेगा। इस तरीक़े से आपको बर्बाद करेगा दूर जा कर के। जिस तरीके से एक नोटोरियस इंसान पैदा होता है, सबसे पहले वो अपने अगल बगल आल पड़ोस अपने ज़िला जवार को प्रभावित करता है। जब ज़्यादा शैतानी बढ़ती है तो वो दूर दराज इलाक़ों में भी जा कर के शैतानी अपनी करने से बाज नहीं आता। उसी तरीक़े से यह खलियात हैं यहाँ पर नॉन हाजकिन लिम्फोमा में, यहाँ पर जिस मकाम पर पैदा होंगी लिम्फ नोड में, वहीं तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि दीगर जिस्म के हिस्सों में फैल जाएगी और वहाँ भी तबाही मचाएंगी। इसको मेटास्टेटिस के नाम से जानते हैं। यह बीमारी जिसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में गैर मुनज़्ज़म अंदाज में फैल सकती है, और लिम्फ नोड्स के अलावा तहाल, स्प्लिन, बोन मैरो और दीगर अज़ा को भी मुतासिर कर सकती हैं। लिम्फोमा की पैथोजेनेसिस, सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, गैर मामूली अचानक तब्दीली। जेनेटिक म्यूटेशंस को अगर तारीफ़ करनी हो तो म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में अचानक गैर मामूली होने वाली तब्दीली को हम जेनेटिक म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। अब इसके नतीजे में एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स की तख्लीक होती है, बनती हैं, फिर उसके बाद उनका
प्रोलिफेशन गैर मुनज़्ज़म हो जाता है और वो लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, इलाज हो जाते हैं, स्प्रेड टू अदर आर्गन्स, जैसा कि कहा गया कि लिम्फाइमस या जिस्म के दीगर अज़ू को भी फैल सकती हैं। तो लिम्फोमा की पैथोजेनेसिस का आगाज़ अमूमन लिम्फोसाइट के डीएनए में जीनियाती तब्दीली से होती है। इस तब्दीली के नतीजे में खलियात अपनी मामूल के अफजाइश के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जो रेगुलेटेड ग्रोथ होता है, मामूल की अफजाइश के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं, या गैर मामूली खलियात लिम्फ नोड में जमा होकर गदूद के साइज़ को बढ़ा देते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, और रफ्ता रफ्ता बीमारी दूसरे लिम्फी आजा जैसे तहाल गुदा हड्डी तक फैल सकती है। इस तरह एक मुहल्लिक रसौली या सरतान की कैफियत पैदा हो जाती है और इसी को लिम्फोमा कहा जाता है। हाजकिन लिम्फोमा और नॉन हाजकिन लिम्फोमा ये बता चुके हैं, एक बार फिर आप सुन लीजिए। आम तौर पर करीबी लिम्फ नोड्स में मुसलसल या मुत्तसिल कॉन्टिगुअस मैनर में फैलता है, करीबी बातों में फैलता है, लेकिन यह सास नादिर यानी जिस्म के बैरूनी मकामात को मुतासिर करता है। दूसरे मकामात, जैसे हमने कहा कि एक नोटोरियस किस्म का नौजवान या कोई भी इंसान है, वो अपने करीब को परेशान करता है, दूर वालों को नहीं परेशान करता है। तो ये है हाजकिन। और गैर हाजकिन में वो जो है करीब को तो करेगा, लेकिन अक्सर और बेशतर बाहर भी निकल कर के बर्बादी करता है। बाज़ औक़ात गैर मुत्तसिल अंदाज में फैल सकता है और जिसके बैरूनी मकामात को भी मुतासिर कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है और ये आपको दिखाया गया। हाजकिन स्प्रेड इन ए कॉन्टिजियस मैनर टू नियर बाई लिम्फ नोड्स, करीबी बातों में मुत्तसिल अंदाज में फैलता है, लेकिन रेयरली इन्वॉल्व्स, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बैरूनी आज़ा इससे मुतासिर हों, यानी जहाँ है वहीं महदूद रहेगा। नॉन हाजकिन लिम्फोमा कैन सम टाइम स्प्रेड नॉन कॉन्टिगुअसली, फैल सकते हैं दूसरे मकामात तक, एंड कैन इन्वॉल्व एक्सटर्नल साइट्स, बैरूनी आज़ा को भी मुतासिर कर सकते हैं। बैरूनी आज़ा मसलन स्किन दिखाया गया है, ये ब्रेन दिखाया गया है, दिमाग, ये जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ग़ज़ाई नाली दिखाई गई है, यानी लिम्फ नोड से निकल कर के जिल्द में, दिमाग में और ग़ज़ाई नाली तक फैल सकता है। और इस फैलने वाले लिम्फोमा का नाम क्या है? नॉन हाजकिन लिम्फोमा। और जो महदूद रहे अपने मकाम तक, दूसरे मकाम पर ना फैले, उसे हाजकिन लिम्फोमा कहते हैं। वही उर्दू में भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब लिम्फोमा के असबाब, लिम्फोमा की असल वजह मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं, लेकिन चंद अवामिल इसके ख़तरे को बढ़ाते हैं। रिस्क फैक्टर, एप्स्टीन बार वायरस, EBV जिसे कहते हैं, इम्यून डिफिशिएंसी, रेडिएशन एक्सपोजर, जेनेटिक फैक्टर्स, बाज़ कीमियाई मादे। अलामात लिम्फोमा की अहम अलामतें यह है: पेनलेस लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, बुखार, रात को पसीना आना, वज़न में कमी, कमज़ोरी, जिल्द में ख़ारिश। इन अलामात को तिब्ब में B सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तशख़ीस, ये लफ्ज़ है तशख़ीस, ये ते छूट गया है यहाँ पर। तशख़ीस लिम्फोमा की तशख़ीस के लिए दर्ज झैल तहक़ीक़ात की जाती है। ये सब ऐसे अमराज हैं जहाँ पर आपको बायोप्सी करना ज़रूरी हो जाता है।
लिम्फोमा के तस्कीले दर्जल तहक़ीक़ात की जाती है। लिम्फ नोड बायोप्सी, CBC, काउंट ब्लड सेल, CT स्कैन, पेट स्कैन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, इनमें सबसे अहम तहक़ीक़ लिम्फ नोड बायोप्सी होती है। उसके बाद तिब्ब यूनानी के रूह से तवजीह तिब्ब यूनानी के मुताबिक जिसमें अखलात अरबा का इतदाल सेहत की बुनियाद होता है। दम, बलगम, सफ़रा, सौदा, यह चारों अखलात अरबा के नाम से जाने जाते हैं और इनका इतदाल सेहत का बुनियाद है। और जब बदन में फसाद खून, क़ल्ब सौदा, मवाद फासिद का इस्तेमाल हो जाए तो गदद में वरम और रसौली पैदा हो सकती है। इसलिए तिब्ब यूनानी में लिम्फोमा को मुतवरम गदद या सरतान गदद के तहत बयान किया जाता है। अब इसका कैसे जो है वसूल इलाज क्या होगा? नंबर 1 तनक़ीह अखलात, नंबर 2 तसहीह मिजाज, मिजाज सही किया जाना, तक़वियत आज़ा, तहलील वरम। इसके बाद इलाज तिब्ब यूनानी में इलाज के चंद अहम तरीक़े। इलाज बिल ग़िज़ा, हल्की ग़िज़ा, सब्ज़ियाँ, फल, परहेज़, मुरग़न ग़िज़ा, बासी ग़िज़ा से इज्तनाब। इलाज बिल दवा, बाज़ हकीमाना अद्वियात, अर्क़ मकोह, अर्क़ शाहतर, शरबत अनार, माजून दबीदल विर्द। इलाज बिल तदबीर, हिजामा, फसद, मसहलात। ख़ुलासा आखिर में हम यह कह सकते हैं कि लिम्फोमा लिम्फी निज़ाम का एक अहम सरतान या कैंसर है जो लिम्फोसाइट के गैर मामूली अफज़ाइश के नतीजे में पैदा होता है। इसके दो अहम अक़साम है, हॉटस्किन लिम्फोमा और नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा। इसके आम अलामात लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट होता है, बुखार और वज़न में कमी हो जाती है। जदीद तिब्ब में इसकी तशख़ीस बायोप्सी के ज़रिए की जाती है, जबकि तिब्ब यूनानी में इसके इलाज के लिए तनक़ीह अखलात, तसीह मिजाज को बुनियादी वसूल करार दिया जाता है। अगर पूरा बात याद ना हो तो ख़ुलासा वाली स्लाइड भी हमारे तब जो है स्टूडेंट्स याद कर लें तो भी उनका कुछ कदर हल्का फुल्का काम चल सकता है। फ़ी अमानिल्लाह।